Hey everyone, hi kids. So how are you all? क्या चल रहा है? Everybody good? Welcome to VNCRT. I am Sakshi Pahuja and I am back with another amazing session where I'm gonna tell you how to avoid the common mistakes in chemistry and 5 common mistakes that we usually make. Till now I make sometimes. मेरे से हो जाती हैं कई बार. ठीक है, तो उन mistakes को discuss भी करेंगे and of course we should try avoid them of course. So those who haven't subscribed, those who are new to the channel, please hit the subscribe button and the bell icon. Make sure you hit the bell icon also so that you don't miss any notification. Okay, first of all, this exciting thing, बहुत exciting चीज आने वाली है, that is vote, which is Vedantu online talent examination, है ना. So it's not only examination, it will make sure your comeback in the study, है ना. फिर से फील्ड में वापस आना है, फिर से उतना ही जोश और उतनी ही पढ़ाई करनी है. ठीक है, तो उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए और वो क्या है? वोट है ना. सो क्या करना क्या है आपको? व्हाट इज वोट? बेसिकली थ्रू दिस एग्जामिनेशन, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एग्जामिनेशन थ्रू विच वी आर गोना प्रोवाइड यू इन डेप्थ रिपोर्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस. ऑल इंडिया रैंक सबसे इंपॉर्टेंट, जेई नीट के लिए आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक मतलब टेस्ट मिल जाएगा जेई नीट का. सब्जेक्ट वाइज रैंक, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, किस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, ये पता लगेगा यहाँ से. स्टेट वाइज रैंक, स्टेट में कहाँ स्टैंड करते हो. क्वेश्चन लेवल टाइम एनालिसिस विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो मतलब लीविंग अदर थिंग्स असाइड, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जामिनेशन, वोट एग्जामिनेशन, राइट? Okay, so people, what are you waiting for? Just make a comeback, and other than this you can win exciting prizes. You can actually get to be the CEO of Vedantu for a day. NASA, telescopes, laptops. Then you have these prizes that you can win for daily challenges. Once you register you will be getting daily challenges also. ठीक है, उसके बाद भी ये वीकली चैलेंजेस के लिए इतने सारे प्राइजेस हैं, तो बहुत अमेजिंग प्राइजेस आर गोना बी गिवन. सो यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड. तो करना क्या है? दिस इज द लिंक. You just have to click on it and register yourself. Okay, so how would you register it? Either download the app or simply click on it and then you will be registered. तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है, नेम, ग्रेड्स, बोर्ड एंड ऑल. then your vote ID will be generated. then you have to choose the day on which you want to give the examination. अपना day choose कर लेना. Okay, सो दीज आर द एग्जाम पैटर्न्स. एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट्स नाउ, तो एग्जाम पैटर्न भी पता होना चाहिए. 11th नीट 90 क्वेश्चन +4 -1 नेगेटिव मार्किंग इज देयर एंड 90 minutes will be provided. 12th नीट 180 questions are gonna be there, 180 minutes +4 -1. 11th JEE 35 questions +4 -1 and 90 minutes. 12th JEE 75 questions +4 -1 and +4 0 also. ठीक है, number of questions are more, so some questions will be there which will not have any negative marking. 180 minutes. So you can also form groups with your friends, squads, and then you can win even bigger prizes you can get. So people, now we come to our topic, that's 5 common chemistry mistakes, the mistakes that we usually make in chemistry. So you can't make the same mistake twice, because the second time you do it, it will no longer be a mistake, it will be a choice. एक बार गलती होती है, दूसरी बार तो जान के कर रहे हो, आप जान के अपना नुकसान कर रहे हो. सो इट बिकम्स अ चॉइस, सो डू नॉट रिपीट इट, ऑफ कोर्स, है ना. चलो आगे चलते हैं. सो वेरी फर्स्ट मिस्टेक दैट वी डू, एंड इट इज़ वैलिड फॉर योर एनी एग्जामिनेशन, फिजिक्स वगैरह के लिए भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज आई हैव केप्ट इट. नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली. ठीक है, इसके ना 2 कारण हो सकते हैं बच्चे. ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, अंडर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है. दोनों ही वजह से यू विल बी, मतलब ऑफ कोर्स, लैगिंग इन योर परफॉर्मेंस. ओके, सो व्हेन यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली, कोई फ़ायदा ही नहीं है ना. सो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग इनफ टाइम फॉर रीडिंग अ क्वेश्चन. ओके, 1 मिनट 2 मिनट ठंडे दिमाग से, ऑफ कोर्स नॉट 2 मिनट, बहुत टाइम हो जाएगा वरना. ठंडे दिमाग से आराम से क्वेश्चन को रीड करो. मेक श्योर यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग आउट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है सपोज आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, है ना. सो क्या होता है बच्चे, इसमें होता क्या है, जैसे ही हमने न्यूक्लियोफाइल देखा ना, है ना, तो साइनाइड, सीधा साइनाइड पे नजर जाएगी. न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, चलो भाई इस पर क्लिक करो, खत्म कहानी. ठीक है, लेकिन रह क्या गया? नॉट इज ऑल्सो देयर. ठीक है, नॉट इज ऑल्सो देयर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, राइट. सो डू नॉट फॉरगेट इट. ये छोटी मोटी चीज़ें, डोंट, नॉट, ये चीज़ें नहीं भूलनी है. ओके,
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेकेंड मिस्टेक, एरर्स वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ये बहुत बार होता है, ये तो स्टिल टीचर से भी हो जाता है ये तो. सो मेक श्योर दैट you मतलब try avoiding them as much as you can, as much you can. Okay, not writing the working formula, सही फॉर्मूला लगाना है, जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वही लगाना है. दूसरा, डू नॉट पुटिंग द डेटा प्रॉपरली, जो डेटा गिवन है उसको ध्यान से सही वैल्यूज में पुट करना है. उल्टी सीधी वैल्यूज मैं बहुत करती थी ऐसा, बहुत, ट्रस्ट मी, उल्टी सीधी वैल्यूज लगा रही हूँ. CV को कभी 5/2 लिख रही हूँ, CP को 3/2 लिख रही हूँ. आई डिड इट अलॉट. कैलकुलेशन एरर बच्चे, मतलब वी आर जितना भी करें, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वी गेट नर्वस एंड वी आर पैनिक्ड अ लिटिल, है ना. तो कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो इस पे ध्यान देना है आपको, ध्यान से करना है इसको, कैलकुलेशन को, है ना. कई बार छोटी कैलकुलेशन भी गलत कर देते हैं हम. 2 × 10.2 लिख दिया, हो जाता है, कई बार हो जाता है. ठीक है. सो ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी बच्चे. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट इट गोज इन योर सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड में कैलकुलेशन एकदम सही से चली जाए. Proper units, make sure that you are using the proper units. If SI units are given, make sure that you are taking each and every unit in SI. ठीक है. and make sure that you know the units. SI unit आपको पता है, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है, वॉल्यूम की बहुत सारी हैं. तो SI यूनिट, प्रेशर की बार, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, है ना. यू नो देम एंड यू नो द कन्वर्जन्स ऑल्सो. ठीक है ना. देन ओनली यू विल बी एबल टू कन्वर्ट इट. थर्ड mistake comes to the chemistry thing only. So missing out the important points in writing structures and equations. ठीक है. स्ट्रक्चर बनाने में सबसे कॉमन मिस्टेक देखो क्या होती है. लोन पेयर्स इफ प्रेजेंट वी काइंड ऑफ समटाइम फॉरगेट देम, है ना. लोन पेयर नहीं लिखते हम कई बार. जैसे मान लो एज सिंपल स्ट्रक्चर, एज सिंपल एज HCl इज गिवन, सो वी जस्ट ड्रॉ इट. ठीक है. वेयर आर द लोन पेयर्स, दे हैव टू बी रिटन. इफ यू आर राइटिंग देम देन इट मेक्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन, है ना. और अगर लिखोगे नहीं तो हो सकता है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको काउंट भी नहीं करो. जैसे मान लो HClO3 बनाना है, HClO3, हाउ व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर. HClO3 पीपल, इट इज ऑफ दिस सॉर्ट, ऐसा कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर. ओके. नाउ लेट अस से इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द लोन पेयर्स इन इट और इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड क्लोरीन. सो देयर इज अ लोन पेयर, एक लोन पेयर होता है यहाँ पे, इसको भूलना नहीं है. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताने हैं मान लो. तो आपने ऑक्सीजन के तो हमें पता है, याद रहते हैं, ऑक्सीजन के आपने निकाल लिए, लेकिन क्लोरीन के भूल गए ये वाले. ठीक है ना. सो ये हैबिट बनाओ अभी से कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल आटम के, साइड आटम्स के यू आर शोइंग इन द स्ट्रक्चर. ठीक है. तो एग्जाम में आपके गलती के चांस कम हो जाएंगे. Next one is geometry structure is only drawn and it is not written, like I have done right now. I have just drawn the geometry, I haven't written it. ठीक है. So chlorine will be sp3 hybridized here and the structure will be pyramidal. ठीक है. So make sure that you draw it and you write it also. इसके भी नंबर कट सकते हैं फाइनल एग्जाम में. Next one, in a chemical equation we generally write the unbalanced equation. Unbalanced छोड़ देते हैं उसको, उसके भी मार्क्स कट सकते हैं. पीपल, इट वेरीज फ्रॉम वन टीचर टू अनदर. कई टीचर होंगे जो ये देखेंगे कि रिएक्शन आता है, बढ़िया है. ठीक है. लेकिन कई टीचर होंगे देखेंगे कि बैलेंस नहीं किया. हाउ कैन यू फॉरगेट बैलेंसिंग, इट इज सच अ मतलब बेसिक थिंग. सो आई थिंक आदत होनी चाहिए बैलेंस करने की. ओके. द नेक्स्ट वन इज नॉट मैंशनिंग द ऑब्जर्वेशन इन अ रिएक्शन इफ आस्क्ड. सो समटाइम्स व्हाट डू वी डू, जैसे पूछा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट. सो यू हैव जस्ट रिटन द रिएक्शन, आपने जस्ट रिएक्शन लिख दिया, CH3COOH प्लस NaHCO3, यू जस्ट रोट द रिएक्शन. ठीक है. और आप अपना चलते बने. ठीक है. तो ये गलती हो सकती है. मतलब यू हैव टू राइट इट दैट अ गैस is evolved, brisk effervescence will be there because of formation of carbon dioxide, then you write the reaction also. ठीक है. So these are some mistakes that should be avoided. Flaws in writing the mechanism. ठीक है. तो मैकेनिज्म बहुत बार आता है आपके फाइनल एग्जाम में, और उसको कन्वर्जन्स और मैकेनिज्म को लिखने में बहुत गलतियां होती हैं. और आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, कन्वर्जन कई बार पूरी सही होती है लेकिन ऐसा लगता है कि मार्क्स कहाँ कट गए. ठीक है. सो एरोज एंड ऑल दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैकेनिज्म. ठीक है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नॉट शोन प्रॉपरली, मेजर थिंग, ये हम सही से नहीं दिखाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये है मेरे पास एंड आई हैव टू डू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है. सो आई एम काइंड ऑफ डूइंग इट दिस थिंग, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है. बिकॉज बाय कन्वेंशन
arrows are drawn from higher electron density to low electron density. Keep it in mind. So these are not correct. You have to show them like this, right? So make sure that you are drawing all the arrows. Reagent used in each step not mentioned. Sometimes we just forget to write the reagent also. reagent लिखना भी भूल जाते हैं, सीधा ये लिख दिया कि इसके बाद ये बन रहा है, इसके बाद ये बन रहा है. टाइप ऑफ रिएक्शन, whenever you write mechanism, जैसे ये mechanism का फर्स्ट स्टेप है मान लो, so I have to write the name of it. जैसे formation of sigma complex is being formed here. So formation of sigma complex is actually the name of the step, which has to be written because it makes clarity na, so clarity should be there. Okay, next one is question based on distinguishing test. टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत बार बच्चे, ये तो मैंने खुद देखा है. जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, सपोज यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस कीटोन and you have to distinguish between, let's say, this ketone. Clearly one is a methyl ketone, other one is not, so you will use iodoform test. So what do you people do? You just write iodoform test. How to distinguish between them? iodoform test. बाकी अपने आप सोच लो, बाकी आगे का अपने आप सोच लो. ये तो अंडरस्टूड है ना कि मिथाइल कीटोन है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, दूसरा नहीं देगा. ये मैं क्यों लिखूं? तो बच्चे ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये भी अंडरस्टूड है, आप ये भी मत लिखो, है ना. लेकिन आपको पूरा लिखना है कि on treating both of them with NaOH and I2, the first one will give yellow PPT, second one will not give yellow PPT, and this is called iodoform test, which is given positively by first one and not by second one. ठीक है. So we just write the name of the test. We do not mention the reagent even. reagent भी mention नहीं करते हैं. I've seen it lot of times. एक नंबर का क्वेश्चन है मैम, क्या क्या लिखे उसमें यार? एक नंबर का क्वेश्चन है, क्लैरिटी तो दो आप. क्लैरिटी हैज टू बी देयर ना. ठीक है. आइडोफॉर्म टेस्ट मेरे को क्या पता कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, जस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट. द कंपाउंड रिस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर टेस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द आंसर. सेम थिंग. ठीक है ना. आइडोफॉर्म टेस्ट लिखा, उसके बाद ये भी लिखो कि ये रिएजेंट है और ये जो पहला वाला है वो टेस्ट दे रहा है, दूसरे वाला नहीं दे रहा है. और टेस्ट है क्या? CH3 विल बी फॉर्म, येलो PPT विल बी गिवन बाय फर्स्ट वन एंड नॉट बाय सेकेंड वन. सो ये बच्चे ये हैं तो छोटी छोटी चीज़ें, बट व्हेन यू कंबाइन देम आपके ना 5, 6, 7, 8 नंबर ना चले जाएंगे इन चीज़ों में, ट्रस्ट में. ठीक है ना. सो या इफ़ यू वांट 95 above percentage, if you want 90 above percentage, you should make sure that you are not committing these mistakes. क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और ये छोटी मोटी चीज़ें छोड़ दी तो बाद में फिर गुस्सा आता है इंसान को कि ऐसा क्यों किया मैंने, है ना. सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू देम. ओके, सो डोंट डू दिस. ठीक है. एंड यू विल ऑफकोर्स यू विल एकदम से एग्जाम में ये सब नहीं आएगा. यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट नाउ व्हेन यू डू द क्वेश्चन. जैसे आप जो प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे भी कोशिश करो आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में मिस्टेक कर रहे हो तो आप एग्जाम में भी मिस्टेक करोगे. इट इज़ मोर लाइकली. ठीक है. सो पीपल, नाउ कम्स दिस क्रैश कोर्स विद JEE एंड नीट. दिस अमेजिंग क्रैश कोर्स विच इज़ हैपनिंग. सो JEE मेंस अभी चल रहा है, नीट अभी आने वाला है. सो आई थिंक दिस क्रैश कोर्स इज़ द थिंग विच यू शुडंट मिस. जस्ट गो फॉर इट. ठीक है. इट हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर बूस्टिंग अप योर परफॉर्मेंस. तो नीट की अगर मैं बात करूँ, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस. JEE के लिए भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ईच ऑफ 1.5 आवर डेली 8 AM till 11 PM. यू कैन आस्क योर डाउट. सुबह से रात तक कभी भी डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस क्रैश कोर्स इज बीइंग टेकन बाय आवर टॉप फैकल्टीज, है ना. तो ये बड़ी सही चीज़ है. फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर. चैप्टर वाइज असाइनमेंट. चैप्टर के बाद समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, सो वी हैव चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स फॉर दैट. ठीक है. सो ऑल यू हैव टू डू इज, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. JEE और नीट के लिए अलग अलग लिंक है, लेकिन अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं तो 40% डिस्काउंट चल रहा है. ठीक है. तो इसको मिस मत करो. 10,000 का कोर्स 6,000 में मिल जाएगा. जो भी मैंने सब बताया वो सब 6,000 में बस. सो डू नॉट फॉरगेट यूजिंग दिस कोड SPACC. लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है. फॉर एनी क्वेरीज यू कैन रीच मी आउट. सिमिलरली नीट का भी लिंक रहेगा. आई थिंक स्लाइड वो मिस हो गई. नीट वाला लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में. सेम नीट वाले पे भी यही डिस्काउंट चल रहा है, 6,000 मिल जाएगा. यू हैव टू यूज दिस कोड SPACC. ओके. फॉर एनी क्वेरीज यू कैन रीच मी आउट थ्रू दिस मेल sakshi.pahuja@vedantu.com. नाउ कम्स माई स्केड्यूल. क्लास 11 मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को होता है. क्लास 11 में चल रही है मैराथन और 12th में चल रहा है वो 1 chapter 1 hour. 1 घंटे में चैप्टर डन एंड क्वेश्चंस ऑल्सो.
ठीक है, तो ये सेशंस ना बच्चे एनसीईआरटी बिल्डअप करेंगे आपकी अच्छे से, एंड एनसीईआरटी इज द की। ठीक है, make sure you join the telegram group, subscribe it, and hit that thumbs up button if you enjoyed the session. And thank you so much for joining, thank you so much for watching till end. I'll see you in the next classes live, of course, next week. Bye bye, take care, have a nice day, bye everyone.